हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगर। ध्यान से सुनना सर। इससे पहले अपन ने 27 केस सिनेरियोस कर लिए, 28 करेंगे। अभी तक आपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप या क्वेश्चन बैंक बैच ज्वाइन नहीं किया तो कर लो सर, बहुत काम की चीज है वो। क्वेश्चन पहले नीचे आके पढ़ लो सर। क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है, ये सब बातें आप चाहो तो एक बार पहले रीड कर सकते हो कि जीएसटी 18% चार्ज करना है, सीजीएसटी एसजीएसटी का बाइफरकेशन उसको चाहिए नहीं, जनवरी की बातें हैं सर, 4 क्वेश्चन है, ओपनिंग बैलेंस निल है। ठीक है, आओ नीचे 4 क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी पेबल इन कैश फॉर द मंथ ऑफ जनवरी बाय द हेड ऑफिस of Infotel in Haryana, assuming no ITC is utilized। बिना ITC यूटिलाइज जीएसटी पेबल इन कैश निकालना है। ऐसा कभी लिखा रहे तो समझ जाना रिवर्स चार्ज कुछ ना कुछ तो होगा। देखेंगे, वो तो पढ़ के पता चलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू द इन्फोटेल इन द मंथ ऑफ जनवरी, आईटीसी भी बता देना सर। ठीक है, फिर चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये तो ऊपर पढ़ के ही पता चलेगा कि सर इन्फोटेल क्लाउड जोन एंड सब्सक्राइबिंग कस्टमर के बीच क्या चल रहा है सर। और उसके बाद बोल रहे हैं सर फॉर द D2 direct to home services, D2H services, Infotel is exploring the possibility of providing equipment like disk, antenna and cables liable to GST at the rate of 28% to customer at an additional charges of 2000. Currently the company collect 1000 from the new customer as installation and 1 month charges for service. In case the dish, antenna or cable are provided, the combined charges would be 3000. Please select the most appropriate answer. जब ऐसा कभी लिखा रहना चाहिए प्लीज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, तो ये ऊपर से रिलेटेड करता ही नहीं है, बट फिर भी एक बार अपन ऊपर पढ़ लेंगे क्योंकि हमसे 4 क्वेश्चन बोला था, पढ़ लिए। आओ ऊपर देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो, Infotel Limited, here and after referred as Infotel, is a telecommunication company operating in India. The company has obtained registration in all the state in India and has its head office in Haryana. ठीक है, हरियाणा। The invoice for the telecommunication services in India is issued by the customer by head office located in Haryana for all the services. ठीक है, for the month of January the following transactions are undertaken. चलो भाई देखते हैं। Receipt from the postpaid mobile customer 25 lakh, 5 lakh is from the customer located in Haryana. बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया से, इससे अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि नीचे क्वेश्चन में लिखा हुआ था सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी का बाइफरकेशन इग्नोर करें। तो 25 लाख का 18%, अबे 25 लाख का 18% सर 4,50,000। ठीक है, ये आउटवर्ड हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, Infotel collected an amount of 20 lakh as subscription income identifiable separately on the postpaid bill from the customer. The amount is not included in the collection point 1. The same was collected for the payment to Cloud Zone. aha, इससे related question था सर। Here and after referred as Cloud Zone, an online content provider from Maharashtra. Full amount was remitted to CloudZone by Infotel on behalf of the postpaid customer. CloudZone issue invoice to the customer in his own name. As per the agreement, Infotel is not involved in any sort of facilitation arrangement for supply of from CloudZone to the customer. The customers on their own avail the facility to pay the services provided by CloudZone by way of payment through Infotel. Subscription name is charged from the customer on actual basis. No fees is charged by the Infotel. तो आपको नहीं लग रहा ये एजेंट जैसा काम कर रहा है? CloudZone कस्टमर बीच में बैठ गया Infotel। एक क्वेश्चन था हमसे, इसके आगे भी दिया हुआ क्या? Infotel receive an amount of equivalent to 10% of the total amount collected from the customer as collection charges from the CloudZone। हाँ, ये जो सर्विस दी है इस पे जीएसटी है ना सर, तो कितने का दिया है? 20 लाख का 10% सर 2 लाख, 2 लाख का 18% कितना आ जाएगा सर? 36,000। तो ये 36,000 तो आउटवर्ड सप्लाई जो कमीशन चार्ज किया। बट सर हमसे एक क्वेश्चन पूछा था, आओ नीचे, ये रहा सर क्वेश्चन कि सर Infotel इज द प्योर एजेंट ऑफ द सब्सक्राइबिंग कस्टमर, क्योंकि Infotel बीच में बैठ गया, क्लाउड जोन और कस्टमर ये दोनों के बीच में बैठ गया Infotel, वही तो काम हो रहा है सर। चलो एक आंसर तो मिल गया। नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। देखो, डायरेक्ट रिसीव फ्रॉम प्रीपेड मोबाइल कस्टमर इज 50 लाख। ठीक है, 50 लाख इंटू 18% कर लूंगा मैं, तो ये कितना आ जाएगा? 50 लाख इंटू 18%, सर ये 9 लाख रुपीज आ रहा है। ठीक है, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम PayQuick Limited, here and after referred as PayQuick, a reseller selling agent of Infotel is 30 लाख। लो भैया, इसका भी 18% कर लो। 30 लाख इसका 18%, ये आ जाएगा सर 5,40,000। ठीक है, द लोकेशन ऑफ पेविक इज इन महाराष्ट्र, कमीशन पेड टू पेविक इज 10% ऑफ द रेवेन्यू रिसीव। ठीक है, हमने कमीशन पे किया है, कमीशन पे किया है, तो ये मेरे लिए क्रेडिट वाली बात है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं सर क्योंकि नीचे क्वेश्चन में क्रेडिट का भी बोला था।
तो 30 लाख का 10% हो गया 3 लाख, 3 लाख का 18%, हमें तो क्रेडिट भी सोच रहे हैं ना सर, तो 54,000 क्रेडिट का भी है। ध्यान रखना, क्रेडिट मत भूल जाना, ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है, ठीक है, ये क्रेडिट है। आगे बढ़ते हैं। हो Infotel collected an amount of 5 lakh from a customer located in Haryana against the DTH services provided in Haryana. This amount includes one-time installation charge of 50,000. तो सर इंस्टॉलेशन चार्ज तो सर कंपोजिट सप्लाई सर, आपको भी पता है सर, हमारा मेन काम तो डीटीएच सर्विसेज प्रोवाइड करना, इंस्टॉलेशन तो सेकेंडरी है सर। कंपोजिट सप्लाई मार्केट में ये होता ही है सर। तो 5 लाख का 18% कितना आ जाएगा सर? 90,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Infotech purchased certain equipment for installation of its tower in the state of Rajasthan. The goods were delivered and installed by the supplier based in Rajasthan. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुड्स परचेज किया गया राजस्थान से, गुड्स सप्लायर इंस्टॉल्ड सब कहां पर हुआ है सर? राजस्थान में, ठीक है। इनवॉइस वाज इशूड टू होटल एट हरियाणा, इन्फोटेल एट हरियाणा हेड ऑफिस। समझो सर, सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों राजस्थान का है, ठीक है, बट सर रिसिपिएंट जो है वो हरियाणा का है। तो दिक्कत ये है सर कि एक स्टेट की सीजीएसटी एसजीएसटी दूसरे स्टेट में जाके कैसे लोगे सर? ये कोई राजस्थान और हरियाणा दोनों जगह रजिस्टर्ड तो नहीं है, ये सिर्फ हरियाणा में रजिस्टर्ड है। तो राजस्थान का सीजीएसटी एसजीएसटी हरियाणा में कैसे क्लेम करेगा? तो इसीलिए इसको छोड़ दो, कुछ नहीं करना है इसका, चाह के भी क्रेडिट नहीं मिलेगी इसकी, ठीक है। अगला, Infotel collaborated with Amaze Inc, a company based in USA, for the technological support in relation to providing provision of cloud storage services to its customer. सर, ये तो import of service हो गई सर। The amount paid by Infotel to Amazon Amaze is 5 crore for technological support. Further, the cloud storage services was provided by Infotel to its unrelated premium customer on free of cost. लो, ये तो अपने कस्टमर को फ्री में देता है, तो सर भले ही ओपन मार्केट वैल्यू दी हुई है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये क्रेडिट तो ले सकते हैं ना सर, रिवर्स चार्ज में पे करेंगे, रिवर्स चार्ज में पे करेंगे तो क्रेडिट की बात। 5 करोड़ का 18 लाख, 5 करोड़ का 18%, इसका 18% ये आ जाएगा सर 90 लाख। 90 लाख ये रिवर्स चार्ज वाला है, ध्यान रखना सर, ठीक है, ये रिवर्स चार्ज वाला है। एज पर द एग्रीमेंट विद Amaze Inc, in case of any failure in the provision of cloud storage services to the customer by the Infotel, Amaze Inc shall provide the backup services to Infotel customer for data storage. The customer is not aware of the fact that data is being stored on Amaze Inc server in case of a failure of Infotel end. Amaze Inc charge an amount of 50 lakh from the Infotel for such instance in the month of January. तो अमेज आईएनसी बोलता है कि अगर कोई फेलियर हुआ तो उसके केस में मैं तेरे को बैकअप वगैरह दूंगा, बट उसके लिए भी 50 लाख चार्ज करूंगा। तो इसका भी तो 18% मैंने पे किया होगा सर, 9 लाख पे किया होगा, और ये भी रिवर्स चार्ज में है सर, तो रिवर्स चार्ज में तो 99 लाख हो गया सर। नाइस। तो हमसे तो पूछा था ना सर, अब ऐड करते जाते सर, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पूछा था, 4,50,000 प्लस 36,000 प्लस 9 लाख प्लस 5,40,000 प्लस नीचे आओ प्लस 90,000 प्लस और क्या बच गया 99 लाख प्लस 99 लाख, क्योंकि रिवर्स चार्ज में हमें पे करना है सर। तो आपसे तो पहला क्वेश्चन यही पूछा था ना सर कि बताओ भाई इसको क्या हो जाता है। देखो जीएसटी पेबल इन कैश बोला है, मैंने आपको बताया भी था रिवर्स चार्ज वाली बात आने वाली है सर। तो ये आ जाएगा सर आपका ऐड करने के बाद 11,11,916,000, ये रहा सर ऑप्शन डी। समझ आया? फिर आपसे इनपुट टैक्स क्रेडिट भी तो पूछा था सर, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल फॉर द मंथ, देखो 99 लाख तो रिवर्स चार्ज वाला है, और एक और था जो हमने कमीशन पे किया था सर, ये देखो क्रेडिट 54,000, तो 99 लाख प्लस 54,000, तो 99 लाख 54,000 आ जाएगा सर आपका। क्लियर? ठीक है, यही फायदा होता है, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर केस सिनेरियो पढ़ने से यही फायदा होता है, आंसर्स फटाफट आते हैं सर। देखो फिर फोर्थ क्वेश्चन, फॉर डायरेक्ट टू होम सर्विसेज इन्फोटेल इज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट, मैंने आपको बताया था सर, ये सर डीटीएच सर्विसेज देता है सर, सर्विसेज। अब ये बोल रहा है कि मैं डिश एंटीना और केबल्स भी साथ में दूंगा, तो सर्विसेज मेन है ना सर, प्रिंसिपल सप्लाई तो सर्विसेज है सर, तो जो सर्विसेज का रेट रहेगा वही लगेगा ना सर, मिक्स सप्लाई थोड़ी के सर। तो 18% जीएसटी लगेगा, 3,000 में 18% जीएसटी। आओ देखो
ये रहा सर 3000 पे 18% जीएसटी। समझ आया? बैठा है दिमाग में? क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हुआ होगा। 28 केस सिनेरियोस हमने कवर कर लिए। लास्ट 7 केस सिनेरियो बचे, फिर पूरे खत्म हो जाएंगे सर। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है? चलो, थैंक यू।